Namaskar, Adab. College, the best part of your life, where you are creating lifelong memories and lasting friendships. The things to learn from your college days are to take part in every moment, either it be sports or for entertainment, or it may be gaining knowledge to evaluate your learning. These days fills maximum colors to life journey in the form of lessons. My level of excitement to show around my college cannot be measured. So let's start this journey. Hello everyone, this is Kriti and I am a student of this college. आज मैं आप सबसे कॉलेज लाइफ के बारे में बात करूंगी. कॉलेज लाइफ एक ऐसी लाइफ है जिसको कौन नहीं जीना चाहता यार. हर कोई चाहता है वो इसे एक ना एक बार जरूर एक्सपीरियंस करे. सो व्हाट्स द बेस्ट थिंग अबाउट द कॉलेज लाइफ? लेक्चर्स बंक करके अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में जाना, खाना पीना करना, घूमना फिरना और रोज कुछ नया सीखना. यही सब तो कॉलेज लाइफ और एक्साइटिंग बना देता है एंड उसे एक्सपीरियंस करने में हमें और मजा आता है. कॉलेज लाइफ जिंदगी का एक ऐसा पन्ना है जिस पन्ने को अगर तुमने ना पढ़ा तो तुम्हारी जिंदगी अधूरी है. तो आइए चलिए मेरे साथ एंड लेट्स हैव अ टूर ऑफ दिस कॉलेज. A lot goes into running an educational institution. So before we move ahead, let's talk to some of the people who run this well-oiled machine. Hello ma'am, may I come in? Good morning ma'am. Anji, good morning Kriti. How are you? I'm good ma'am. What about you? I'm also fine, thank you. Sounds good ma'am. Now I want you to tell us about our college and share your experience with us. Okay, first of all, I would like to say that I consider myself very blessed that I have been chosen by God to serve this prestigious institution. And as far as my college is concerned, my staff is very cooperative, very supportive. Since the day I have joined, I can see that both the teachers as well as the students, they have been participating enthusiastically, and a number of seminars and workshops have been organized. ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਾਈਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है. कॉलेज एकेडमिक्स को लेके जहाँ तक मेरे इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू की बात है तो देखिए जो पर्पस है एकेडमिक्स का वो फुलफिल होना चाहिए. फुलफिल होना चाहिए किस पॉइंट से कि सिलेबस जस्ट कंप्लीट करना ही हमारा एकेडमिक का पर्पस नहीं है. एकेडमिक्स को यदि ग्रो करना है तो एकेडमिक्स को ग्रो करने के साथ साथ आपको करियर की ग्रोथ भी है स्टूडेंट्स की, वो भी देखनी पड़ेगी. और करियर ग्रोथ के लिए आपके जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या जिस सब्जेक्ट की भी क्लास हम ले रहे हैं, योर टीचिंग शुड बी रिलेटेड विद द कैरियर्स of your topic. This is what is so special about our college. Everyone is involved and working towards its growth. So, बहुत से लोगों से मिलना है और काफ़ी सारी बातें करनी है आज. Let's start with the teachers. For me, coming from a different part of the country, and there's a language, a little bit of a language gap that happened with me since I'm not very comfortable with Hindi. I'm not a native Hindi speaker. And obviously Punjabi, I do not have much knowledge about that. So in terms of that, a little bit of a challenge, but otherwise teaching is always pleasurable. Okay, wonderful ma'am. And ma'am, I would want to know about your friend circle in college. Would you like to elaborate about it?
Friend circle as in when I was a student. Yes, ma'am. So we used to have, as I said, you used to have a group of, girls and boys. We love to read, So I don't know about this generation, but during that time when I was doing my, my graduation, so we used to love reading. So we have this circle. ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਚਰਨ ਘੜ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਸੱਧਰਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਸੂਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सर आपके स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बारे में क्या व्यूज हैं? देखिए, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स इज ए गुड थिंग, बट व्हेन वी यूज द टर्म पॉलिटिक्स it goes in the negative side. It gives the impression that do anything whatever you want, but end result you should obtain. It includes legal, illegal, manipulation, everything. Therefore, my opinion is it should be students association, it should not be students politics, so that leader can learn, leader can come forward, and the person who is selected as a leader out of the students, he or she should be very disciplined, very punctual, academically totally involved, so that he can play a role model for the rest of the students, so that he will motivate them. पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन को भी हमारा कॉलेज काफ़ी इंपॉर्टेंस देता है। टू कीप द स्टूडेंट माइंड एक्टिव एंड इंटरेस्टेड वी हैव मेनी लैब्स प्रोवाइडेड हियर, जैसे कि साइकोलॉजी लैब। यहाँ पर अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं। इसके बाद है ज्योग्राफी लैब, जहाँ पर हमें अर्थ साइंस के बारे में जानने को मिलता है, और यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स भी डिस्प्ले पे हैं और बच्चों को एक्सपीरियंस के लिए फील्ड में भी लेके जाया जाता है। Here comes the Fine Arts Lab, where students explore art genres and their historical context in a focused way and take up applied projects. Students are exposed to different mediums and techniques for visual expressions. And after that, let's explore the smart classrooms that cultivate education by opening doors to digital teaching and learning methods. जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में टीचर्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, वैसे ही बुक्स की भी स्टूडेंट लाइफ में बहुत वैल्यू होती है। तो अब हम एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर हमें बहुत धीरे बात करनी पड़ती है। एक ऐसी जगह जहाँ तुम्हारी क्यूरियोसिटी खींच लाए, जहाँ साइकोलॉजी से लेकर मैथ्स और ज्योग्राफी से लेकर लॉ की बुक्स एक जगह मिलती हैं, और इस जगह को हम ज्ञान की तिजोरी भी कह सकते हैं। लाइब्रेरी की स्टूडेंट लाइफ में बहुत अहमियत होती है। यहाँ पर आपको आपके हर सवाल का जवाब भी मिल जाता है, और किताबें इंसान की अच्छी दोस्त होती हैं, और किताबों से दोस्ती करना एक बहुत अच्छी आदत होती है। आज हम बात करते हैं लाइब्रेरी के बारे में प्रतिभा मैम से। तो मैम, लाइब्रेरी की हमारी कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? हमारी लाइब्रेरी जो है एक तो फुल्ली एयर कंडीशनड है, और ये डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है, लाइक सर्कुलेशन सेक्शन, मैगजीन सेक्शन, पीरियोडिकल सेक्शन, रेफरेंस सेक्शन। सर्कुलेशन सेक्शन में बेसिकली स्टूडेंट्स आके बुक्स इशू करवा सकते हैं। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उन्हें हम 2 बुक्स इशू करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 14 डेज।
और जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं विद ऑनर्स, उन्हें हम 3 बुक्स इशू करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 14 डेज। और स्टूडेंट्स का जैसे एडमिशन होता है, स्टूडेंट्स लाइब्रेरी के बारे में जान सके, इसके लिए हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हम क्लास वाइज एक तो उनका पूरा सेशन रखते हैं ताकि बुक्स किस वे में अरेंज है। यहाँ लाइब्रेरी में बुक्स क्या है, सब्जेक्ट वाइज अरेंज होती है अकॉर्डिंग टू डीवी क्लासिफिकेशन स्कीम। और उसमें क्या रहता है, सभी सब्जेक्ट्स को एक पर्टिकुलर नंबर दिया गया है। हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बच्चों को बताते हैं कौन से सब्जेक्ट की बुक्स कहाँ रखी गई हैं और वो कहाँ कैसे करेंगे। और ओपन एक्सेस सिस्टम लाइब्रेरी में हम फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लाइब्रेरी लॉक एंड की में नहीं है और बच्चे बुक्स इशू करवा सकते हैं। और रेफरेंस सेक्शन की जो बुक्स होती है वो वहाँ बैठ के पढ़ने के लिए होती है, वो ओवरनाइट इशू की जा सकती है। बाकी वो उसमें इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरीज ऐसी बुक्स होती हैं, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स वगैरह उस तरह की बुक्स होती हैं। Our college also help in developing personality and character of students through voluntary community services and defense training. स्कूल कॉलेज में चलने वाला ये भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। लाखों बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं और अलग अलग जगह में कम्युनिटी के साथ बेसिकली हम एक विलेज को जो आसपास होता है उसको अडॉप्ट करते हैं, हर स्कूल या कॉलेज, और उस विलेज में उसका कम्युनिटी को सर्विस देना होता है। वो कई तरीके हो सकते हैं। आजकल ब्लड डोनेशन कैंप्स के जरिए होता है, पल्स पोलियो अभियान में सरकार का बहुत पॉपुलर अभियान है, उसमें हमारे बच्चे सर्विस देते हैं, ट्री प्लांटेशन, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन और दुनिया भर के कार्यक्रम हैं जिसके ज़रिए हम कम्युनिटी तक रीच करते हैं, पहुंचते हैं और उसको बेहतर बच्चों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बन गई कि कम्युनिटी जो है हमारी है और उसके अंदर कैसे हम अपना सर्विस दे सकते हैं। एनसीसी का आपको पता है फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो ये जैसे आर्मी के 3 विंग्स होते हैं वैसे ही इसके ये आर्मी का ही यूथ विंग है। तो इसमें ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जैसे 3 है, आर्मी, नेवी एंड एयर। जो अपने कॉलेज में वो नेवल विंग है। आर्मी के लिए अपने कॉलेज ने अप्लाई किया है तो फर्दर 1 ईयर या कभी भी शुरू हो सकती है। तो लेकिन अपने आज के टाइम अपने कॉलेज में नेवल विंग है। नेवल विंग में टोटल 50 सीट्स है। इसकी सीट्स होती हैं जिसमें 35 सीट्स एसडी के लिए जिसको सीनियर डिवीजन कहते हैं, बॉयज़ के लिए कैडेट्स होते हैं, 15 सीट्स फॉर गर्ल्स के लिए जिसको एसडब्ल्यू कहते हैं, सीनियर विंग। तो ये तो बेसिक है। उसके बाद आते हैं इसके ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग इसकी पूरी पर एनुअल चलती है, इनके कैंप्स लगते हैं, हर वीक इनकी ट्रेनिंग होती है। इसमें जैसे इसके 2 सब्जेक्ट होते हैं, कॉमन सब्जेक्ट होता है, एक सर्विस सब्जेक्ट होता है। कॉमन सब्जेक्ट होता है तीनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम होता है। सर्विस होता है जैसे नेवी वालों के लिए नेवल के बारे में बताया जाता है और आर्मी वालों के लिए आर्मी के लिए और एयर वालों के लिए एयर। तो वो ये मतलब 80-20 का रेशियो होता है जिसमें 80 कॉमन 20 सर्विस सब्जेक्ट। एनसीसी और एनएसएस के साथ साथ स्पोर्ट्स भी एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पोर्ट्स से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसे कि टीम वर्क, टीम यूनिटी, और इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। और स्पोर्ट्स खेलने से हमारी फिजिकली मेंटली हेल्थ भी ठीक रहती है। और अगर हम अपने कॉलेज की बात करें तो हमारे कॉलेज के स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स ने बहुत अपनी मेहनत से बहुत सारी चीज़ें हासिल की हैं और हमारे कॉलेज ने स्पोर्ट्स में एक बहुत अच्छा मुकाम भी हासिल किया है। तो आइए और सब कुछ जानने के लिए हम बात करते हैं हमारे फिजिकल एजुकेशन के एचओडी से। सर, हमें स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ और अचीवमेंट्स के बारे में बताएं। राजे कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ यस सर। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਮੂਰਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਵਰਸਿਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟ ਇਹ ਬਣਵਾਇਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਦਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਡਰਨ इंफ्रास्ट्रक्चर की लोड़ होती है वो असी टाइम टू टाइम लेने रहने हैं बच्चों की सहूलत वास्ते। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने कॉलेज लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया, जैसे कि टीचर्स के व्यूज़ और स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस। तो आपके हिसाब से हमें और किन चीज़ों का एक्सपीरियंस करना चाहिए? और भाई कैसा है? बढ़िया भाई, तू सुना? एकदम बढ़िया भाई। भाई मुझे एक बात बता कि कॉलेज लाइफ में टीचर्स के व्यूज़ और स्पोर्ट्स के अलावा हम किस चीज़ का एक्सपीरियंस कर सकते हैं? भाई स्पोर्ट्स के अलावा भाई हम स्टूडेंट्स को तो भूल ही गए। टीचर्स और बुक्स के अलावा एक कॉलेज लाइफ में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि एडमिन स्टाफ, स्टूडेंट्स और हेल्पिंग स्टाफ। तो चलिए इन सबसे एक एक करके बात करते हैं। सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जो एडमिन ब्लॉक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, उसकी क्या फंक्शनिंग है? हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को रन करने के लिए हमारे जो 2 सुपरिटेंडेंट हैं
उनके अंडर उनकी गाइडेंस के बीच सारा कुछ होता है। जो हमारे एक सुपरिटेंडेंट अकाउंट्स हैं और एक हैं सुपरिटेंडेंट एस्टेब्लिशमेंट के। जो एस्टेब्लिशमेंट सुपरिटेंडेंट हैं उनके अंडर हमारे एस्टेब्लिशमेंट क्लर्क 1, 2 और डायरी डिस्पैच और एडमिशन क्लर्क्स काम करते हैं। जो EC1 और EC2 हैं उनका काम है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का जो सारा रिकॉर्ड, उनकी सर्विस बुक वगैरह जो मेंटेन करते हैं वो। और डायरी डिस्पैच का काम है जो बाहर से हमारे पास कुछ लेटर्स आती हैं, अगर कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है या हमारी कोई हमने कोई भेजी हुई थी लेटर, उसकी अप्रूवल आ जाती है तो वो हमको मिलती है उनके थ्रू। और एडमिशन का जो काम है वो एडमिशन क्लर्क करते हैं, वो स्टूडेंट्स की सारी डिग्रीज और DMC का रिकॉर्ड रखते हैं। और जो सुपरिटेंडेंट अकाउंट्स हैं उनके अंडर हैं हमारे अकाउंटेंट, फंड क्लर्क, बिल क्लर्क और फी क्लर्क। और जो बिल क्लर्क हैं वो सारे अलाउंसेस और पार्क का जो है रिकॉर्ड रखते हैं, जो भी न्यू पे स्केल या जो भी पेज वगैरह बनती है वो बिल क्लर्क बनाते हैं। और फंड क्लर्क जो है वो डिपार्टमेंट वाइज, अगर कोई डिपार्टमेंट वाइज कोई परचेज होती है तो उनके पास कितना फंड अवेलेबल है उसका रिकॉर्ड उनके पास होता है। और जो स्टूडेंट की फ़ीस वगैरह का रिकॉर्ड है वो फी क्लर्क रखते हैं। उसके बाद अपने जो केयर टेकर होते हैं उनका काम है पूरी कॉलेज की मेंटेनेंस करना। और जो परचेज होती है कॉलेज में, अगर कोई भी चीज़ मंगवानी है तो वो केयर टेकर के थ्रू होती है। और कॉलेज की जो भी बिल्डिंग की मेंटेनेंस होती है तो वो भी केयर टेकर ही करवाते हैं, उनकी गाइडेंस के अंदर सारा कुछ होता है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप कॉलेज की क्लीनिनेस और ये सफाई मैनेज कैसे करते हैं? तो हमारे पास कॉलेज का जो क्लीनिंग स्टाफ है वो 13 बंदे हमारे पास कॉलेज के हैं। इसमें से हम 3 बंदे लगाते हैं बाहर पार्किंग एरिया, आउट एरिया जो देखते हैं, और 2 बेसमेंट में लगाते हैं, 3 मेन फ्लोर पे, 2 फर्स्ट पे, 2 सेकंड पे, तो जिससे हमें दिक्कत नहीं होती। वो प्रॉपरली अपना सारा कुछ ध्यान रखते हैं। और मैं भी चेक करता रहता हूँ बीच बीच में। तो जैसे कि प्रॉपरली डस्टबिन भी मैंने रखे हुए हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन वाला भी रखा हुआ है, जिसमें हम गीला सूखा कूड़ा डालते हैं। प्लास्टिक का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, वो हम नहीं इसमें वेस्टेज में रखते हैं, उसको अलग से करते हैं। कांच का भी अलग से एक डस्टबिन बना हुआ है। तो अब सब कुछ मैनेज अच्छे से हो जाता है। हमारा जो स्टाफ है बहुत अच्छा मैनेज कर रहा है हमारे साथ। प्रिंसिपल, बुक्स, टीचर्स और स्पोर्ट्स के अलावा एक और एसेंशियल पार्ट है इस कॉलेज का जो क्लीनिनेस, सिक्योरिटी और मेंटेनेंस का ध्यान रखते हैं। अगर कॉलेज में साफ सफाई नहीं होगी तो ऐसे माहौल में ना ही टीचर्स का पढ़ाने का और ना ही स्टूडेंट्स का पढ़ने का एनवायरनमेंट क्रिएट हो पाएगा। जिस तरह कॉलेज की साफ सफाई पर ध्यान दिया जाता है उतनी ही शिद्दत से हरियाली को भी बनाए रखा जाता है। कॉलेज में पढ़ाई के अलावा परफॉर्मिंग आर्ट्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स अपनी स्किल और टैलेंट को डेवलप कर पाते हैं। भाई जो आप इंजॉय करते हो, जैमिंग करते हो, आप यहाँ पे रोज आते हो? नहीं, जब भी मेरा अगर लेक्चर फ्री हो तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, फिर आप किसी बैंड के साथ भी हो? हाँ जी, हम मेरा एक बैंड है, सरगन चैंट्स नाम है, मैं उसमें एज अ गिटारिस्ट हूँ। अच्छा, गिटारिस्ट। अच्छा, सामने जैसे ऑडियंस बैठी है, ये ऑडियंस रोज आती है या कभी कभी? नहीं, जैसे कि अपना किन किन के लेक्चर फ्री होते हैं तो वो आ जाते हैं, और कभी ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कम आ जाते हैं, और इन्जॉय हो जाता है थोड़ा फ्रेंड्स के साथ।
तो जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं बहुत सारे और यहाँ पे ग्रुप बैठा है, तो हम इनसे बात करते हैं। हेलो भाई। हेलो ब्रदर, कैसे हो? बढ़िया, आप बताइए। तो अच्छा, मैंने आपसे पूछना था कि आपको ये कॉलेज कैसा लगा? ये कॉलेज बहुत अच्छा है। तो आप इसके बारे में थोड़ा और बताइए। कॉलेज के बारे में जैसे हम स्टडी की बात करें, यहाँ पे स्टडी बहुत अच्छी है। जैसा कि मैंने सोचा था कि उससे भी बहुत बेहतर है ये कॉलेज, और यहाँ पे हमें ब्रेक्स मिलती है बीच बीच में। और स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स के यहाँ पे डिफरेंट स्पोर्ट्स है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और इसमें एक्टिविटीज़ भी होती रहती है कॉलेज में। और लास्ट बात यह है कि हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं हर चीज़ के लिए, चाहे वो एजुकेशन है या कोई और फील्ड में। हमारी यही यादें हमारे साथ जीवन भर रहेंगी, कुछ बुरी और कुछ अच्छी। हम किसी दिन उन्हें याद करके मुस्कुराएंगे। फिर मिलेंगे हम कहीं ना कहीं दोबारा। फिलहाल के लिए शायद इतना ही था साथ मेरा और तुम्हारा।